Hello dear students, welcome back to your biology class. How are you all? I hope you all are well and also doing your work greatly. So, as you all know that we have done 2 chapters of biology. So let's start our third one, which is plant kingdom. So in your previous chapter we have studied that in 1969 a scientist R.H. Whittaker has proposed 5 kingdom system of classification, and he classified all living organisms into 5 basic categories which is known as kingdoms. So the 5 kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae, out of which we have studied first 3 kingdoms in detail in our chapter number 2. So in this chapter we are going to study the detailed classification of kingdom Plantae, which is commonly known as plant kingdom. Okay. Now the weird thing about plant kingdom is that our understanding of this kingdom has been changed over time. For example, fungi and members of Monera and Protista, which have cell walls, are included in plant kingdom, but now they are excluded from it. स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सभी प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सो सिर्फ इस एक क्राइटेरिया के बेसिस पे कि उनके अंदर सेल वॉल है तो फंजाई, प्रोटिस्टा और मोनेरा के सभी मेंबर्स जिनके अंदर सेल वॉल थी उन सभी को प्लांट किंगडम में शिफ्ट कर दिया गया था. बट उनके बाकी फीचर्स प्लांट्स जैसे नहीं थे. सो आर.एच. व्हिटेकर ने उनके लिए एक सेपरेट किंगडम डिवाइड किया कि ये प्लांट्स में इंक्लूड नहीं हो सकते. सो इसलिए उनको प्लांट किंगडम से एक्सक्लूड कर दिया गया. सो इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट किंगडम के भी फर्दर डिविजन्स को स्टडी करने वाले हैं. प्लांट किंगडम की फर्दर 5 डिविजन्स हैं, दैट आर एल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. सो इन 5 डिविजन्स की हम फर्दर स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को. द फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, which is proposed by Carolus Linnaeus. This system used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves. Means इस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लांट्स को सिर्फ उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया था, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, जैसे कि उस प्लांट के लीव्स के नंबर्स कितने हैं, शेप कैसा है या फिर कलर कैसा है, उस बेसिस पे. And it also based mainly on vegetative characters or on the structure of androecium. ये vegetative characters के basis पे ही plants को classify करने वाला system था. But now there are few drawbacks of this system, like it separated the closely related species. इसने बिल्कुल closely related species को different categories में divide कर दिया. And the next one gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. इसने दोनों प्रॉपर्टीज को, वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज दी कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इजीली अफेक्ट हो सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. सो हम वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, उनको इक्वल वेटेज पॉसिबल नहीं है. सो एज अगेंस्ट दिस सिस्टम, a natural classification system was developed by George Bentham and J.D. Hooker. This classification system is based on natural affinities among organisms, and it included external as well as internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry. Students, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया उनके दोनों फीचर्स के बेसिस पे, मीन्स उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे भी और उनके इंटरनल फीचर्स के बेसिस पे भी, लाइक उनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट्स की फाइटोकेमिस्ट्री. ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. और ये सिस्टम दिया किसने था? जॉर्ज बेंथम एंड J.D. हुकर. नाउ एट प्रेजेंट द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज गोइंग ऑन, which is based on evolutionary relationships between the various organisms, and it is acceptable by whole over the world because the evolutionary relationships between any two organisms are verified by their fossils.
This assumes that all organisms belonging to same taxa have a common ancestor. So dear students, कोई भी टू ऑर्गेनिजम्स को उनके फॉसिल्स के बेसिस पे वेरीफाई करना, उनको रिलेट कर पाना ज़्यादा कन्वीनियंट है एज कंपैरिजन टू अदर टू सिस्टम्स. सो ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये अभी तक चलता आ रहा है. इसको दिया किसने था? एंगलर एंड प्रेंटल ने. बाद में इसे मॉडिफाई किया था हचिंसन ने. Now we will see few branches of taxonomy, like the first one is numerical taxonomy. It is carried out using computers and this based on all observable characters. And in this taxonomy, data processed after assigning numbers and codes to all characters. So numerical taxonomy के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स सभी कैरेक्टर्स को डिफरेंट उनके नंबर्स और कोड्स दिए जाते हैं और ये सारी प्रोसेस होती है कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे ही सभी कैरेक्टर्स को कोड्स दिए जाते हैं. सो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्टली सभी कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है. एंड द सेकेंड वन कि इसमें आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंसीडर कर सकते हो. Now the next taxonomy is cytotaxonomy. Here the word cyto. Do you know cytology? साइटोलॉजी वो ब्रांच होती है स्टूडेंट्स जिसमें हम सेल की स्ट्रक्चर के बारे में, सेल की डिटेल स्टडी करते हैं. दैट ब्रांच इज नोन एज साइटोलॉजी. सो साइटोटैक्सोनॉमी भी इसी की बेसिस पे है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कि सेल के बारे में टोटली इंफॉर्मेशन, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, बिहेवियर कैसा है, तो ये इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है. इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. And the next one is chemotaxonomy. Chemo means chemicals. So it is based on chemical constituents of the plants. So read out this topic from your book and be ready for our next class in which we will start the detailed study of alga.